मागचे रायस मुद्दामून आणि एक टीम ओनर इल्लो आसा आणि एक टीम ओनर इल्लो आसा जेणे खूबशे तो टिमी घालता. म्हाका याद आसा तेणी मुद्दाम मांद्रेच्या आमच्या प्लेयरांक सुद्दां व्हरोन गेमी खेळिल्ले आसा. असो आमचो टूवी क्रिकेटरचो ओनर धर्मा भोसले येयल्लो आसा. तुमी खूब जाण ताका वळखतले. आमी आमच्या MCDच्या वतीन रिक्वेस्ट करता आमच्या व्हॉलंटियराक की तेंचे एक पुष्पगुच्छ दिवन स्वागत करचें म्हणून. टूवीचो ओनर धर्मा भोसले. इथे जोरात ताळी जावचे धर्मा खातीर. Once again, it's a brilliant shot. Might be the second boundary of the second ball. It's a great shot, and that's the second boundary, consecutive boundary. And score moves to 8 runs without any wicket. Over to you, Combox. Thank you, Sanju bhai. 8 without loss after the first 2 deliveries. Lokesh Meena and Sohail Sheikh in the middle. And with the ball, it's Ankur Singh. Good delivery, Yorker Lane delivery. And we'll find just one. That's gone over him and looking for the second chance of run out. Not quite. Good early call by his partner Sohail to send him back. Ganpati Warriors Fonda winning the toss and deciding to bowl. But plenty of Arsenal that we can see about the Ganpati Warriors Ponda. Reverse sweep attempted, and that has been missed. Officials in this particular game, Raju Davolkar and Siddesh Armalkar, both very experienced umpires in the scoring. We've got Akhil Parab is the computer scorer, the manual scoring that he's been handling, and Mr. Ajit Achrekar handling the digital scoring. That's gone through. Jagat Sarkar just away from his reach, and that's gone. Gone for a boundary. 4 by signal by the umpire. And some bonus runs for I. Mauli Kudar. Score moves to 13 with that boundary. Appealing, that's gone, given. And the wicket falls. And Jagat Sarkar just explaining to him that it got the meat of the blade. Jagat Sarkar was celebrating the first one to go up and gets the wicket, 13 for 1. And it's Sohail Sheikh who has to depart. He's gone for a duck. It's 13 for 1. DJ. New man in Rupesh Tandil.
And Pranal Sawant has been given the ball. 5 wickets in that previous game. Hat trick in that 5. Excellent bowling. It's just that the batsman at the back end couldn't quite get the remaining runs that the team needed against Salset. Full toss, and that's been dispatched into the night sky, and it's out of here. Lokesh Meena with that humongous hit out of the park. And welcome to the bowling crease, Pranal. Just that television umpire has been called in to intervene about that waist height full toss. Let's see if it's above the waist height or is it just below. TV umpire to director, we have a player review for no ball, waist high full toss. So it's a fair delivery. We can continue. The ball was dipping on the batsman and he just smoked it out of the park. 19 for the loss of 1. Just the second over in progress. First delivery and that's clobbered. A helicopter. And that helicopter has landed over the crowd at the cow corner fence. What a hit that is. Huge hit. 2 deliveries, 2 maximums. And Pranal Sawant needs to get his line right. Just can't afford to earn in length. The first one full toss, got dispatched over square leg. Next one over the cow corner fence. One. First over costing 13 for the loss of 1. And now this over 12 of first 2 deliveries. What kind of plan do the bowlers have now? Oh, they're trying to getting some wisdom with the very experienced campaigners. Ankur Singh also providing some input and also Mohit along with Chandan Naik. You can't get the ball back. No, finally got the ball back. And the crowd has been lively and they have been helping to find the ball. Not just Damba, but this entire crowd has helped us.
That's up in the air. Three fielders converging. And it falls in no man's land. 2 more runs added. Well, it was that opportunity where you could have picked up his wicket, but no. It falls in no man's land between those 3 men. Goes down the ground and goes over the top. An excellent take by Sadanand Duri from the Sada Sports Ready. One-handed catch out of the boundary. Won't be giving anything. Excellent take. Again, 3 maximums. Lokesh Meena again goes down the ground again. That's 6 more. This is some colossal hitting by Lokesh Meena. 33 of just 8 deliveries he's batting on currently. Team total 37 for 1. 4 maximums in this over. "26 runs of this over so far. 6-6 to 6-6. Where is this one headed? Oh, good delivery this time. Good comeback. Dot delivery to end the over. After completion of 2, it's 39 for 1. 39 for 1 after completion of 2 overs. Lokesh Meena is turning it on with 35 or just 9 deliveries.
If you talk about today's proceedings, Yogesh Pendkar, Lokesh Meena and Akshay Patil have been the stars as far as the outstation players are concerned. We haven't seen that much yesterday, last evening, where one of the most expensive players, Karan Ambala, he couldn't quite fire. But these three, especially these two, have completely shown why they are regarded as highly top priority players by most of the teams when it comes to outstation signings. Again, 6 more. Well, the fielder is a mere spectator. He can just look at it, which is sailing over his head. 47 of just 11 deliveries. 50 up with that maximum for I. Mauli Kudal. 52 for 1. Fastest 50 in this competition so far as the team total is concerned. Well, every opportunity for Lokesh Meena as well to complete that mark. Just bifurcate that 52 for 1. 4 buys, 1 leg buys, and then entire runs have been scored by this man on your screen, Lokesh Meena. Change of angle, and it will be a dot delivery coming from over the stumps now. The left hammer from Ponda. Shiroda, to be precise. Nicely flicked. How about that for a stroke? And that's gone the distance, and with that half century for Lokesh Meena. Well, this lively crowd will acknowledge what a effort this is. Fabulous, fabulous knock. Team needed it, and he has provided the fireworks. Wow, just amazing. Look and admire the stroke play of this man. 3 maximums in this over so far. Nicely played with soft hands. That's good batting. Once you get a maximum, you get a single. 3 maximums of this over, and then rotating the strike. 3 overs done and dusted. It's 59 for 1. Talking about Lokesh Meena and his innings. 7 maximums. 2 boundaries. Striking at 385 right now. Lokesh Meena, 54 of just 14 deliveries. Second half century of the competition. First to Rajat Kudalkar. That was yesterday for the Abir Baba Bardes. Now for I. Mauli Kudal, it is Lokesh Meena. And finally, the outstation player is firing with the bat, with all cylinders blazing. Earlier it was Yogesh Pendkar with that quick fire 40 to take his team home. Now this man setting a total, maybe a mountain to chase down for the Ganpati Warriors Ponda. You need to apply the brakes. Need to get rid of that man, Lokesh Meena. If not, then you are chasing around 100, 120. Or maybe more than that. 5 overs remaining. Change in bowling, it will be Ankur Singh. I'll just let you know about, after this one delivery, a fun fact. Rarest of the occasions that has occurred. That's up in the air. Could be hold out. Long time, and oh, put down. Would you believe it? Ajay Halgekar of the chance that he puts down. Well. Must have been something really nice for the evening snack that he took. Fortune favoring the brave. Might have been having some luck over that cup of tea. 60 for 1. Well, the opportunity was there to grab it, but that just slips away from the hands of Ponda.
brings the left-hander on strike. Rupesh Tandil. Throwing to the bat. That's gone through. Bit of fumble from the fielder. Will allow Rupesh to get at the mark with the single. Score moves on to 61. Just about a few hours back, it was Bangladesh A taking on India A. The game got into a super over. 194 for 6 and 194 for 6 later on. And then in that super over, India couldn't score a single run. Where that's come from? Well, that's gone from the back of the bat. And that will just be another single. Diptesh Palkar, the fielder down there. Another chance gone begging. 62 for 1. 3.3. If this kind of onslaught continues, we are definitely looking at 120, 130 in the remaining overs. Reverse sweep attempted. That's gone over the keeper. No chance for Jagat Sarkar. Gone over him. And a fortuitous boundary as far as the I Mauli Kudal are concerned. Score moves to 70. थँक्यू श्याम. तसेच आमचे ग्राउंडाचे राजीर आसा आमचे आणि एक लेजंड बॉलर पेडण्याचे दोंडू तुळसकर. रिक्वेस्ट करता दोंडू प्लीज जेवचो आणि आपली बसका घेवची. दोंडू तुळसकर, द लेजंड बॉलर फ्रॉम पेडणे. Reverse sweep, that's gone through. But this time the fielder at short fine. Prathamesh Naik fields it. Dot delivery. So far this over has costed a fine. I'm talking about Dondu Turaskar. He has been there for many years now. Leather ball cricket, he's been superb. Wrong line. And that wrong line has been punished. Gone for 4. 4 overs done and dusted at the halfway mark. Aimauli Kudal very happy with 70 for 1. Lokesh Meena batting on 56 of 16. Rupesh Tandil 9 of just 5 deliveries. Well, 4 overs done and it will be change in voice. At the start of the next over, it will be Samir Pandre with you. Thank you, Samir. Thank you, DJ. 2 minutes. इतली वर्सां आमी क्रिकेट खेळटा आणि सदांच आमच्या पेडणे तालुका खातीर गोवा पुलिसांक तो गोवा पुलीस म्हणून आसा. आणि इतली वर्सां आमी क्रिकेट खेळटा तेन्ना सदांच आमच्या वांगडा खांदाक खांद लावन पेडण्या खातीर क्रिकेट खेळ्ळो, पेडण्याचें नांव वयर काडलें असो आमचो लेजेंडरी बॉलर दोंडू तुळसकर आयज आमकां हांगासर आसा. हांव रिक्वेस्ट करता महेशाक आमच्या की दोंडू तुळसकराक एक पुष्पगुच्छ आणि आमचे एक मोमेंटो दिवन तेजो छोटोसो सत्कार करचो म्हणून. आणि रिक्वेस्ट करता सगळे पेडणेकार, स्पेशली पेडणेकार आणि सगळ्या लोकांक दोंडूक एक जोरदार ताळयो मारून तेचे अभिनंदन करपाचे म्हणून. दोंडू तुळसकर, द लेजेंडरी बॉलर फ्रॉम पेडणे. थँक्यू महेश. निश्चितपणे जुन्या आठवणींना उजाळा मिळतोय या मैदानावर. ज्यांनी संजय नागवेकर यांच्या खांद्याला खांदा लावत त्यांना साथ देत सुरुवातीला पारसे युथ, त्यानंतर ध्रुव स्पोर्ट्स पारसा, त्यानंतर डॅझलिन स्पोर्ट्स मापसा या संघाचं प्रतिनिधित्व करताना गोवा राज्यामध्ये नव्हे तर गोवा राज्याच्या बाहेरही एक चतुरसूत्र गोलंदाज म्हणून ख्याती कीर्ती मिळविली असे जुने जाणते खेळाडू धोंडू तुळसकर यांचा या स्पर्धेच्या निमित्तानं सन्मान होताना दिसतोय. गोलंदाजी मार्कमध्ये बदल होतोय. यावेळी मात्र फटका काहीसा फसतोय आणि जो फलंदाज भरात होता, ज्या फलंदाजानं या मैदानावर दहशत माजविली होती, तब्बल 7 वादळी षटकार आणि 2 नेत्रदीपक चौकार यांच्या माध्यमातून अर्धशतकाला ज्यानं गवसणी घातली होती तो लोकेश मीना यावेळी मात्र चकतोय. बऱ्याच उशिरानं का होईना या ठिकाणी सफलता प्राप्त होते. मात्र जरी मैदानाचा रस्ता सोडून पॅव्हेलियनच्या दिशेनं या ठिकाणी फलंदाज लोकेश परततोय, टाळ्यांच्या गजरात त्याच्या छोटेखानी म्हणण्यापेक्षा एका बहारदार खेळीला एक मानवंदना दिली जाते.
7 खणखणी षटकार व 2 चौकार यांच्या मदतीनं वैयक्तिक 56 धावांचं योगदान देत या ठिकाणी लोकेश मीना खास राजस्थानवरनं या संपूर्ण स्पर्धेसाठी आई माऊली कुडाळ क्रिकेट संघाचं प्रतिनिधित्व करण्यासाठी आलाय आणि आपली उपयुक्तता आपल्या विस्फोटक फलंदाजीनं त्याने या ठिकाणी दर्शवली आहे. सुस्थितीमध्ये निश्चितपणे कुडाळ क्रिकेट संघ मात्र दुसऱ्या बाजूनं या सामन्यामध्ये परत एकदा माघारी परतण्याची अंधुकशी संधी या ठिकाणी गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज मोहित गावकर देताना दिसतोय. मैदानाच्या बाहेर लोकेश जातोय व लोकेशची जागा करण्यासाठी नवीन फलंदाज संपर्क झाला. निश्चितपणे षटकाराचा शिक्का बसतोय, शिक्का मुर्तब होतोय. मीही आक्रमकतेत कुठे कमी नाही. विस्फोटक फलंदाजी माझ्या नसानसात भिनली आहे आणि एकदा का आमच्या संघासाठी कामगिरी करायची मला संधी मिळाली तर त्या संधीचं सोन्यात मी रूपांतर करेल व 100 धावांपेक्षा जास्त धावांचा सांघिक डोंगर मी मैदानावर झळकवेन या इराद्यानं जोहेल नाईकचा एक प्रहार षटकारासाठी जातोय. 76 धावा 2 कड्यांच्या मोबदल्यात. डावातील 5वं षटक प्रगतीपथावर. 76 धावा. गणपती वॉरियर्स पोंडा गोवा क्रिकेट संघ काहीसा अडचणीत हा येतोय. मोहित गावकरचा चेंडू आखूड टप्प्याचा स्वतःसाठी जागा निर्माण केली. फटक्याची निवड केली. फटक्याची निवड करून फटका हा डीप फाईन लेगला सजविला. एक मोठा षटकार लॉंग ऑनच्या दिशेनं आणि त्या षटकाराच्या पाठोपाठ लागोलाग दुसरा षटकार हा डीप फाईन लेगला जोहेल नाईक या ठिकाणी टोलवतोय. लोकेश मैदानाच्या बाहेर गेला तरी जोहेल नावाचं वादळ हे मैदानावर अक्षरशः थैमान घालताना हे दिसतंय. 82 धावा 2 कड्यांच्या मोबदल्यात. परदा मोहित सज्ज. आखूड टप्प्याचा चेंडू 2 षटकारानंतर एक समयोचित खेळी. मोठ्या फटक्याच्या आहारी न जाता ढिल्या हातानं चेंडू पॉइंटला चंदन नाईकच्या दिशेनं टोलवला जातोय. एकेरी धाव जोहेलच्या खाती सहजगत्या जमा होते. ज्या एकेरी धावेने धाव फलक बदलतोय 83 धावांवर. 5वं षटक प्रगतीपथावर. 83 धावा धाव फलकावर 2 कड्यांच्या मोबदल्यात. डाव्या हाताचा फलंदाज रुपेश तांडेल आतापर्यंत 2 चौकार सजवतोय. 9 धावांची खेळी करतोय. समयोचित अशी साथ आई माऊली कुडाळ क्रिकेट संघाच्या धावसंख्येला देतोय. तो खेळण्यासाठी सज्ज होतोय. मोहित गावकर याची गोलंदाजी. 83 धावा धाव फलकावर 2 कड्यांच्या मोबदल्यात. हलकेच ढिल्या हातानं चेंडू टोलवला होता. चेंडू टोलवता क्षणी एकेर धावेचा जोहेलचा इरादा. मात्र दुसऱ्या बाजूनं रुपेश स्पष्ट नकार देतोय. धावचीच्या स्वरूपात चूक करायची नाहीये. संघाचा डोलारा सावरायचा आहे. एक छोटेखानी भागीदारी साकारायची आहे. अजूनही तब्बल 18 चेंडूंचा अवधी या डावातील शेष आहे. त्यामुळे धावचीच्या स्वरूपात या ठिकाणी आत्महत्या करण्यापेक्षा लढून आपण या ठिकाणी ही बाजी मारावी असा कान मंत्र आपल्या साथीदाराला रुपेश देतोय आणि निर्धाव चेंडूनं 5व्या षटकाची सांगता ही होते. संपूर्ण गोवा राज्यामध्ये, संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्रावर एकच चर्चा आणि ती चर्चा कोणती असेल तर मांद्रेम चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2025 7वं पर्व. तब्बल 10 लाख रुपये प्रथम पारितोषिक असलेली ही क्रिकेट स्पर्धा आणि या क्रिकेट स्पर्धेमध्ये निश्चितपणे न्याय दिला जातोय तो स्थानिक अशा खेळाडूंना. सिंधुदुर्ग जिल्हा व गोवा राज्य यांच्या समन्वयाने 16 तालुक्यांचे बहारदार संघ 2 ऑल इंडिया आयकॉन खेळाडूंच्या मदतीनं आपलं नशीब आजमावताना दिसत आहेत आणि आपला चतुरसूत्र खेळ या मैदानावर या स्पर्धेच्या निमित्तानं ते दर्शवतायत. डावातील 6वं षटक. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज पाहायचाय कोण सज्ज होतोय तो बहुधा गोलंदाज अमीर गाडेकर. आखूड टप्प्याचा चेंडू बॅकफुटला जातोय. हलकेच फटका सजवतोय. चेंडू टोलवता क्षणी एकेर धाव घेत या ठिकाणी बहुधा डावखुऱ्याचा साथीदार रुपेश तांडेल याला स्ट्राईकला आणलं जातंय. अमीर गाडेकर गोलंदाज आणि त्याच्या गोलंदाजीच्या विरुद्ध रुपेश तांडेलला फटकेबाजी सोपी पडेल असा कयास या ठिकाणी वर्तवला जातोय आणि त्यामुळेच मोठ्या फटक्याच्या आहारी न जाता एकेर धावेचं महत्व राखत या ठिकाणी स्ट्राईक ही सुरेखरित्या रोटेट केली जाते आमिर याच्या गोलंदाजीवर. अमीर गाडेकर एक अनुभवी असा गोलंदाज. वेगवान असा चेंडू. फटका टोलवायचा होता, फटका सजवायचा होता. मात्र चेंडूचा टप्पा पडल्यानंतर अनइव्हन्स बाउन्स म्हणजे या ठिकाणी आपण पाहतोय चेंडूचा टप्पा पडल्यानंतर चेंडू काहीसा खाली राहतोय. खाली राहिलेल्या चेंडूचा अंदाज घेण्यास फलंदाज पूर्णतः चुकतोय. निर्धाव चेंडू गणला जातोय. 84 धावा धाव फलकावर. आखूड टप्प्याचा चेंडू. यावेळी मात्र संपर्क होतोय. चेंडूचा प्रवास मिड विकेटच्या दिशेनं मात्र कोणत्या स्वरूपात झाला याची खातरजमा पंच करतायत. पंचांचा इशारा चौकाराचा व रुपेश तांडेलच्या खाती निघतोय तो तिसरा दमदार चौकार. MCT चौकार या त्याच्या डावातील आणि या 4 धावांनी धावफलक वृद्धिंगत होतोय तो तब्बल 88 धावांवर.
हल्ला बोल माजवणारी फलंदाजी आता आई माऊली कुडाळ क्रिकेट संघाच्या वतीनं आपण पाहतोय मैदानावर. प्रदा अमेरिकेकर सज्ज, यावेळी संपर्क चेंडूचा प्रवास डीप लॉंग ऑफच्या दिशेनं चौकारासाठी 4 धावांनी धावफलक वधारतोय, धावफलक सुधारतोय तो 92 धावांवर. म्हणजे 90 धावांना बघता बघता कशी गवसणी घातली आहे. डावातील अवघं 6वं षटक प्रगतीपथावर. पहिल्या चेंडूपासून लोकेश आक्रमक दिसतोय. पहिल्या चेंडूवर अंकुर सिंगच्या चौकार तोलविल्यानंतर आपले आक्रमक फटकेबाजीचे इरादे त्याने बुलंद जाहीर केले होते आणि त्यानंतर प्रणयलच्या गोलंदाजीवर निघालेले ते 4 खणखणीत षटकार, त्यानंतर मोहित गावकरच्या गोलंदाजीवर 2 तगडे षटकार, याच्या जोरावर तो वैयक्तिक अर्धशतकालाही ही गवसणी घालतोय. शरीराच्या काहीशा दूरवरनं चेंडू खेळला जात एकेरी धाव काढण्याचा प्रयत्न, थोडंसं खराब क्षेत्ररक्षण होतंय. एक धाव फलंदाज पूर्ण करतायत, निष्प्रभ ठरतोय तो क्षेत्ररक्षक. चेंडू अडविण्यात आणि त्याचाच फायदा घेत ज्या ठिकाणी केवळ एकेरी धाव कुडाळ संघाला मिळू शकली असती त्या ठिकाणी एकेरी धावेचं रूपांतर दुहेरी धावात होतोय. महत्वपूर्ण म्हणजे रुपेश तांडेल स्वतःकडे स्ट्राईक ठेवतोय व एमसीटी षटकाच्या सांगतेचा संभाव्य चेंडू खेळण्यासाठी तो सज्ज होतोय. 94 धावा धावफलकावर या 2 कड्यांच्या मोबदल्यात. उजव्या यष्टीच्या बराच बाहेर जाणारा चेंडू, दोन्ही आज समांतर होत आहेत. ते पंचांचे जी आलोचना केली होती की संभाव्य शेवटचा चेंडू म्हणजे अजूनही एक चेंडू शेष या षटकातील 95 धावा धावफलकावर झळकल्या जात आहेत. जीवित्वाची अस्तित्वाची लढाई घेत गोवा राज्यातील एक तगडा संघ व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एक प्रतिभाशाली संघ यांची ग्रंथिका मैदानावर होते. अमीर गोलंदाज यावेळी मात्र फटका मारण्याचा अंदाज फलंदाजाचा चुकतोय. मात्र सुदैव कुडाळ संघाला एवढं साथ देतोय की चुकीचा फटका या ठिकाणी फलंदाज रुपेश तांडेलचा, मात्र त्याला आवश्यक असलेल्या 4 धावांचा बोनस देत आता धावसंख्या पहा 6 षटकांच्या सांगतेखेरीज तब्बल 99 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. खेळ समाप्त होतं आणि निश्चितपणे या सामन्याचं भवितव्य ज्या खेळाडूवर गणपती वॉरियर्स क्रिकेट संघाच्या दृष्टिकोनातून अवलंबून आहे तो खेळाडू जगत सरकार खास या ठिकाणी कलकत्तावरनं खेळण्यासाठी आलाय. चमूमध्ये दाखल झालाय. तो गणपती वॉरियर्स संघाच्या तो जगत सरकार आपल्या स्क्रीनवर येतोय. वैयक्तिक कोट्यातील या ठिकाणी महत्वपूर्ण पहिलं आणि संघासाठी 7वं षटक फेकण्यासाठी 99 धावा 2 कड्यांच्या मोबदल्यात. उजव्या यष्टीच्या बाहेर जाणारा चेंडू सोडून दिला होता. तो फलंदाजाने कदाचित हा चेंडू नकारात्मक चेंडू म्हणून घोषित केला जाईल अशी अपेक्षा होती जोहेल नाईकची. मात्र पंच सांगतायत चेंडू मर्यादेचं उल्लंघन करणारा नव्हता तर मर्यादेच्या क्षेत्रामध्ये फलंदाजला चकित करणारा होता. निर्धाव म्हणून घोषित केला जातोय. मात्र पंचांच्या निर्णयाविरुद्ध या ठिकाणी खातरजमा करण्यासाठी 3ऱ्या पंचांची मदत ही घेतली जाते मैदानी पंचांकडनं. सहा षटकांचा खेळ समाप्त. 99 धावा धावफलकावर. 7व्या षटकाच्या सुरुवातीला काय घडतंय काय बिघडतंय. चेंडू निर्धाव गेला असेल तर गोलंदाजाच्या खाती जमा होईल. जर चेंडू वाईट दिला तर सांघिक शतक धावांचं हे आई माऊली कुडाळ संघाचं धावफलकावर झळकलेलं आपण पाहू शकतोय. 3रे पंच विचार मंथन करतायत, खातर जमा करतायत. निर्णय त्यांचा येणं हे बाकी आणि त्यांच्या निर्णयाकडे तमाम क्रिकेट रसिकांचं लक्ष हे खिळलेलं आपण पाहतोय.
या ठिकाणी तिसरे पंच खातर जमा करतायत. वाईटचा इशारा येतोय आणि या एका अवांतर धावेने 100 गाठली जाते ती आई माऊली कुडाळ क्रिकेट संघाकडनं. परत गोलंदाज जगत सज्ज. लोअर फुल टॉस पद्धतीचा चेंडू सुरेखरित्या सजविला जातोय लॉंग ऑफला. एकदा फलंदाज पूर्ण करतायत. त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण करण्यात थोडीशी निश्चितपणे गफलत झाली होती, मात्र ती गफलत सुधारली जाते. चेंडूची फेक यष्टीरक्षक अंकुरच्या दिशेने येते. एकेर धाव सहजगत्या जोहेल नाईकच्या खाती. ज्या एकेर धावेने धावफलक वाढतोय तो 101 धावांवर. तब्बल 101 धावा 2 कड्यांच्या मोबदल्यात. अपेक्षित धावा तर धावफलकावर झळकलेल्या आपण पाहतोय, मात्र धावांची अजूनही भूक आहे ती कुडाळ संघाला. 11 चेंडूंचा अवधी त्यांच्यासाठी शेष आणि या 11 चेंडूंचा सामना करण्यासाठी स्ट्राईकला रुपेश व नॉन स्ट्राईकला जोईल ही डाव्या उजव्या हाताची जोडगोळी. ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडू फटका हवेमध्ये मारला जातोय. फटका ज्या क्षणी टोलवला गेला होता षटकाराचा शिक्का बसला होता. षटकार मिळतोय तो रुपेश तांडेलला. 6 धावा मिळत आहेत त्या आई माऊली कुडाळ क्रिकेट संघाला. ज्या 6 धावांनी धावफलक सजला जातोय तो तब्बल 107 धावांवर. 12 चेंडू 29 धावा. या सामन्यामध्ये कामी येतोय तो रुपेश तांडेल. एक भरोशाचा असा खेळाडू. आपली उपयुक्तता या सामन्यामध्ये कुडाळ क्रिकेट संघासाठी किती महत्वाची आहे हे तो सिद्ध करतोय व परत एकदा सामना करण्यासाठी तो सज्ज. ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडू. यावेळी मात्र फटका फसतोय. चेंडू हवेत राहतोय. डिबॅक्सचा कव्हरचा क्षेत्ररक्षक झेल टिपण्याच्या प्रयत्नात बराच पुढे जातोय. परिणामता चेंडू हा जमिनीला दान होतोय. दुसरी धाव तर सहजगत्या पूर्ण केली जाते आणि 2 धावांवर समाधान मानल्यानंतर एक गचाळ अशी फेक तिसऱ्या धावेचा बोनस मिळविण्यास कारणीभूत ठरते. ती अर्थातच कुडाळ संघासाठी. आज जे काही मैदानावर घडते ते सारं काही कुडाळ संघाच्या बाजूनं, तर पूर्णपणे नशिबाची साथ ही अर्थातच गणपती वॉरियर्स क्रिकेट संघाला मिळत नाहीये. ज्यावेळी फलंदाजी करत होता लोकेश मीना त्यावेळी 2 वेळा जेल त्याचे 2 क्षेत्ररक्षकांच्या मधोमध पडले होते आणि यावेळी सुदैवाची साथ मिळते ती रुपेश तांडेलला. 3 धावा त्याच्या खाती ह्या जमा होत आहेत. 110 धावा. परत एकदा लोअर फुल टॉस पद्धतीचा चेंडू सुरेखरित्या टोलविला जातो. एक धाव फलंदाज पूर्ण करतायत. दुसरी धावेची तमाम शंका या ठिकाणी जी निर्माण झाली होती त्याला पूर्ण विराम. दुसरी धाव या ठिकाणी घेत पूर्णत्वास नेली जाते. 2 धावा अर्थातच या ठिकाणी जोहेलच्या खाती. ज्या दुहेरी धावांनी धावफलक वधारतोय तो तब्बल 112 धावांवर. 112 धावा 2 कड्यांच्या मोबदल्यात. 70 धावांवर गडी बाद झाला होता तो दुसरा आणि त्यानंतर परत एकदा 42 धावांची बहारदार भागीदारी आपण तिसऱ्या कड्यासाठी या डाव्या उजव्या हाताच्या जोडगोळीकडनं अनुभवतोय. परत जगत सरकार सज्ज होतोय. यावेळी पहा फटका मारण्याचा प्रयत्न. शॉर्ट फाईन लेगच्या क्षेत्ररक्षकाचं कौतुक करावं. चेंडू बराच दूरवर जात होता. प्रणव व दिप्तेश या जोडगोळीनं या ठिकाणी निश्चितपणे बहारदार अशी कामगिरी केली आहे व चेंडू चकवा देऊ पाहत होता त्याला रोखलं जात निश्चितपणे 3 धावा या ठिकाणी वाचविल्या जात आहेत. एकेर धाव्याने धावफलक वधारतोय 113 धावांवर. 113 धावा 2 कड्यांच्या मोबदल्यात. काय घडतंय काय बिघडतंय गणपती वॉरियर्स क्रिकेट संघाच्या दृष्टिकोनातनं याचा यत्किंचितही थांगपत्ता मैदानावर हा लागत नाहीये. पुढे सरसाबाद रुपेश तांडेलच्या बॅटमधनं एक खणखणीत फटका. परत एकदा सीमोल्लंघन होतंय. चेंडू सीमारेषेच्या पलीकडे जातोय तो 4 धावांसाठी. 7व्या षटकामध्ये या ठिकाणी आक्रमकता सिद्ध करताना रुपेश तांडेल षटकार चौकारांची बरसात करतोय. आपल्या संघाला 117 या विशाल महाकाय धावसंख्येपर्यंत पोहोचवण्यात सिंहाचा वाटा तो उचलतोय लोकेश मीना याच्या साथीनं. शेवटचं षटक या डावातील अंतरिम संभाव्य 6 चेंडू हे शेष गोलंदाजी मार्कवर उंच पुरा अनुभवी असा गोलंदाज फोंडा गोवा क्रिकेट संघाचा मोहित गावकर याची वर्णी ही लागते. मोहित गोलंदाजी मार्कवर पहिला चेंडू काहीसा लेग ब्रेक पद्धतीचा वळसा घेणारा. चेंडूचा टप्पा पडल्यानंतर आणखी बाहेर जातोय. चेंडूचा पाठलाग करण्याचा जोहेल नाईक हा प्रामाणिक प्रयत्न करतोय, मात्र त्याचे प्रयत्न अपुरे पडतायत. यष्टीरक्षकाच्या सरळ हाती चेंडू विसावतोय व एक निर्धाव चेंडू या षटकातील गणला हा जातोय.
परिणाम मोहित गावकर राईट आर्म ओव्हर द विकेट पद्धतीनं मारा करताना याही वेळी त्याच चेंडूची अक्षरशः ओढली जाते. लेग ब्रेक पद्धतीची गोलंदाजी या ठिकाणी मोहित कडनं आपण पाहतोय. चेंडूचा टप्पा उजव्या यष्टीच्या बाहेर लागतोय. चेंडूचा पाठलाग करण्यास फलंदाजाला तो निश्चितपणे या ठिकाणी फसवतोय. खुगली गोलंदाजी हे अर्थातच या ठिकाणी गोलंदाज मोहितचे. परत गोलंदाज सज्ज. यावेळी अंदाज चकला जातोय तो फलंदाज. जोएलचा बाईच्या स्वरूपात अवांतर धावेच्या स्वरूपात निघते ती एकेर धाव. ज्या एकेर धावेने धावफलक वधारतोय तो 118 धावांवर. 118 धावा, 7 षटक, 3 चेंडू यांचा खेळ समाप्त. 3 गड्यांच्या मोबदल्यात अजूनही अंतरिम 3 चेंडूंचा खेळ हा बाकी. डावखुऱ्या हाताचा रुपेश तांडेल स्ट्राईकला येऊन पोहोचतोय. सामना करण्यासाठी सज्ज होतोय तो मोहित गावकर याची गोलंदाजी. क्षेत्ररक्षक रोरशना आपण पाहू शकता. एक डीप मिड विकेट, एक डीप लॉंग ऑन, एक डीप लॉंग ऑफ असे क्षेत्ररक्षक. एक डीप स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक तैनात केला जातोय. तो एक डीप पॉइंटलाही क्षेत्ररक्षक सीमारेषेवर सीमारक्षक म्हणून तैनात. पहिला मोहित गावकर सज्ज. आकृती टप्प्याचा चेंडू केवळ दिशा दिली जाते. चेंडूचा प्रवास डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेनं एक धाव फलंदाज पूर्ण करतायत. दुसरे धाव घेण्याचा प्रयत्न. सीमारेषेच्या अलगत चेंडू अडविला जातोय. चेंडू रोखून चेंडूची परती केली जाते यष्टीरक्षकाच्या दिशेनं व रुपेश तांडेलच्या खाती मिळत आहेत त्या 2 धावा. ज्या दुहेरी धावांनी 120 धावांचा या ठिकाणी डोंगर उभा केला जातोय. तो कुडाळ संघाकडनं 2 चेंडूंचा अजूनही खेळ हा बाकी. 15 चेंडू 38 धावा असं धावांचं पृथक्करण रुपेश तांडेल याच्यासाठी या सामन्यात. 50 धावांची बहारदार भागीदारी झालेली आपण पाहतोय. परत एकदा एक हाती फटका सजविला जातोय. एक धाव फलंदाज पूर्ण करतायत. दुसरी धावेची लालसा निर्माण झाली आहे. सरळ फेक येते यष्टीरक्षकाच्या दिशेनं. बाकीचे सोपस्कार यष्टीरक्षक पूर्ण करतोय आणि दरम्यानच्या कालावधीत आपलं उद्दिष्ट रुपेश तांडेल यानं पूर्ण केलंय की नाही याची खातर जमा करण्यासाठी मैदानी पंच हे परत एकदा तिसऱ्या पंचांचा सहारा घेताना दिसत आहेत. दुसऱ्या धावेच्या लालसेत या ठिकाणी वैयक्तिक 39 धावांवर रुपेश तांडेलला मैदान सोडावं लागतंय. तब्बल 51 धावांची बहारदार भागीदारी तिसऱ्या कार्यासाठी जोएल व त्याचा साथीदार रुपेश तांडेल या जोडगोळीमधनं होताना दिसते व 39 धावांची बहारदार खेळी करत या ठिकाणी तमाम प्रेक्षक वर्गांच्या टाळ्यांची मानवंदना स्वीकारत रुपेश तांडेल सन्मानानं मैदान सोडतोय व टगआउटमध्ये आपल्या सहकार्यांच्या साथीला तो जमा होतोय. एकेरी धावेने धावफलक बदलतोय. धावफलक निघतोय तो 121 धावांवर. डावातील बहुधा हा अंतरिम शेवटचा चेंडू आणि हा शेवटचा चेंडू खेळण्यासाठी मैदानावर कोण गेलाय तर लोकेश चव्हाण. गाझियाबादवरनं ही स्पर्धा खेळण्यासाठी ज्याला निमंत्रण दिलं गेलं कुडाळ संघाच्या वतीनं तो लोकेश चव्हाण एक अष्टपैलू असा खेळाडू खेळण्यासाठी सज्ज होतोय. यावेळी मोठा फटका सजवायचा होता. प्रयत्न फसतोय. एकेर धावेची मनीषा पूर्णत्वास नेली जाते व या एकेर धावेने 8 षटकांचा खेळ समाप्त. या 8 षटकांच्या सांगतेखेरीज 122 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात व तब्बल 123 धावांचं महाकाय लक्ष या अस्तित्वाच्या लढतीमध्ये गोवा राज्याचा तगडा संघ गणपती वॉरियर्स फोंडा गोवा या संघासमोर ठेवलं जात आहे. सुरुवात अतिशय बहारदार झाली होती. आक्रमक फलंदाजीची नांदी झाली होती जी मोठ्या धावसंख्येची ज्योती पेटविली लोकेशने. ती अखंड तेवत राहणार हे ठामपणे सिद्ध केलं रुपेश तांडेल व जोएल नाईक या फलंदाजांनी आणि त्यामुळे जो अखंड दीपाचा नंदादीप जो तेवत ठेवलाय 122 धावांचा तो नंदादीप विजयात परावर्तित होतोय की 122 धावांच्या डोंगराला न जुमानता जी विस्फोटक आक्रमक फलंदाजी नसानसात भिनली आहे गणपती वॉरियर्स क्रिकेट संघाच्या फलंदाजात. त्या आक्रमक फलंदाजीचं प्रदर्शन घडवीत अशक्य ते शक्य करत ही अस्तित्वाची लढाई कुडाळ संघ विरुद्ध जिंकतोय की नाही या ठिकाणी गणपती वॉरियर्स क्रिकेट संघ हे सांगण्यासाठी आवाजामध्ये बदल होतोय
व यानंतरच्या समालोचनासाठी मैदानावर मी निमंत्रित करतोय आमचे मित्र नाना परब यांना व काही क्षणापुरती या मैदानावर आपली रजा घेतोय. नमस्कार, सुस्वागतम. आपण चौथा क्रमांक पाहतोय. सामना क्रमांक 4. आई माऊली कुडाळ विपक्ष गणपती वॉरियर्स पोंडा या दोन संघादरम्यान प्रथमतः फलंदाजी केली ती आई माऊली कुडाळ क्रिकेट संघ. तब्बल 122 धावांचा डोंगर मैदानावर रचतोय. 3 गड्याच्या मोबदल्यात 123 धावांचं तगडं आव्हान हे असेल ते म्हणजे गणपती वॉरियर्स पोंडा क्रिकेट संघासमोर. सुरुवात लोकेश मीनानं केली, सुंदर फटकेबाजी केली, सर्व क्रीडारसिकांची ज्यानं मनं जिंकली या मैदानावर. खास करून या स्पर्धेसाठी राजस्थानहून या स्पर्धेसाठी आलाय आणि आज या स्पर्धेत तब्बल 7 षटकार 2 चौकारांनिशी 17 चेंडू 56 धावांची वादळी खेळी ही आपल्याला पाहायला मिळाली. त्याला 7 सुंदर दिली ती म्हणजे सोहेल शेख मात्र स्वस्तात बाद झाला. त्यानंतर रुपेश तांडेलची एक झुंज आपल्याला पाहिली ती 16 चेंडूत 39 धावांची. म्हणजे संघाचा पाया मजबूत रचला आणि पाया मजबूत रचल्यानंतर कळस चढवायचं कार्य मात्र रुपेश तांडेल आणि झोईल नाईकनं केलं. झोईल नाईकचे 2 टोलीजंग षटकार आतापर्यंत मैदानावर आपण पाहिले. तब्बल 122 धावा 123 धावांचा बाटला करायचा आहे तो गणपती वॉरियर्स क्रिकेट संघाला. गोलंदाजी करत असताना अंकुर सिंगनं सुरुवात केली. पहिल्याच षटकात ज्यानं 9 धावा खर्च केल्या, 1 गडी टिपलाय. त्यानंतर प्रणल सावंतनं दुसरं षटक तब्बल 26 धावांचं पाहायला मिळालं. तिसऱ्या षटकात अमीर गडेकर याही षटकात 3 षटकार घेतले, 19 धावा खर्च केल्या. त्यानंतर चौथं षटक अंकुर सिंगचं आपल्याला पाहायला मिळालं. अंकुर सिंगच्या या षटकात 11 धावा. धन्यवाद नाना. दरम्यान या मैदानावर खास कुडाळवरनं मांद्रेम्स चॅम्पियन्स ट्रॉफीच्या निमित्तानं आमचे स्नेही, आमचे जवळचे मित्र, या स्पर्धेच्या संयोजनामागे ज्यांची संकल्पना खरी दडली आहे त्या संजय नागवेकरचे मित्र खास कुडाळवरनं हा सामना पाहण्यासाठी, या स्पर्धेला शुभेच्छा देण्यासाठी सन्माननीय नाना कुडाळकर, त्यानंतर सन्माननीय नितीनजी निमळेकर, त्यांच्या बाजूला पंचगिरीमध्ये ज्यांचं नाव आदरानं घेतलं जाते ते सन्माननीय संदीपजी रुद्र सर, आणि ज्यांच्या माध्यमातून प्रिन्स व समादेवी मित्रमंडळाची स्पर्धा अनेक वर्ष कुडाळच्या भव्यदिव्य मैदानावर आम्ही अनुभवली ते आमचे सुनील धुरी सर. आणि त्यानंतर जेडीचा गणपती, द्विपूजा गणपती आपण सर्वांनी पाहिला आहे. त्या द्विपूजा गणपती देवस्थानचे अध्यक्ष विनायक कांबळे हे मान्यवर कक्षात उपस्थित आहेत. मी विनंती करतोय या ठिकाणी संजयजी नागवेकर तसेच महेशजी कोनारकर यांना की मांद्रेम चॅम्पियन्स ट्रॉफीच्या निमित्तानं पुष्पगुच्छ देऊन या सर्व मान्यवरांचं आपण स्वागत करायचं आहे. सर्वप्रथम या ठिकाणी सन्मान होतोय, स्वागत होते विनायक कांबळे, आमचे जवळचे मित्र, रेगी गणपती मंडळाचे विश्वस्त अध्यक्ष सन्माननीय विनायक कांबळे यांचं या ठिकाणी स्वागत होतंय.
ज्यांच्या माध्यमातून अनेक वर्ष कुडाळच्या भव्य दिव्य मैदानावर प्रिन्स स्पोर्ट्स क्लब समाजवी मित्र मंडळ यांच्या तर्फे स्पर्धा राबवली जाते ते आमचे सुनीलजी तुरी यांचंही स्वागत पुष्पगुच्छ देऊन या स्पर्धेच्या निमित्तानं होतंय. पंचगिरीमध्ये ज्यांचं आदरानं नाव घेतले जाते ते सन्माननीय संदीपजी रुद्रे सर यांचंही स्वागत या स्पर्धेच्या निमित्तानं घेतलं जात आहे. त्यांचा सन्मान हा केला जातोय. त्यानंतर सन्माननीय नितीनजी निमेकर सर हेही त्यांच्या समवेत या संपूर्ण स्पर्धेचा आनंद घेण्यासाठी उपस्थित, त्यांचंही या ठिकाणी पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत मांद्रेम चॅम्पियन्स ट्रॉफीच्या निमित्तानं. आणि त्यानंतर सन्माननीय नाना कुडाळकर हेही या सामन्याचा या स्पर्धेचा आनंद लुटण्यासाठी उपस्थित, त्यांचंही या ठिकाणी पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केलं जात आहे. शब्दसुमनाने व पुष्पगुच्छ देऊन मान्यवरांचं स्वागत झालंय. आम्ही विनंती करतोय व्यासपीठावर आपण पाहावं. निश्चितपणे एवढ्या लांबवरनं केवळ संजय नागवेकर व त्यांच्या सहकाऱ्यांवर असलेलं प्रेम आणि त्या प्रेमाचा आदर म्हणजे काय, मित्रत्वाचं नातं म्हणजे काय, ते मित्रत्वाचं नातं यापुढे अखंडित आबाद राहो अशी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतोय. आणि परत एकदा या सामन्यामध्ये आपल्यास घेऊन जातोय. ओव्हर टू सर नाना. थैंक यू सर. सभी दर्शकों का खिलाड़ी का स्वागत है. प्रतियोगिता का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है. विकेट गिर गया और बैटरी डॉट ए या विकेट यूज एंड गेम से खेलने पर आपको मिलेगा रिवर्स पावरफुल पावर बैंक और उसके साथ सीपस बॉटल और उसके साथ ग्रैंड प्राइज आईफोन 17 और इसके लिए आपको बिल्कुल जाके रजिस्टर करना पड़ेगा. नाना हमारे साथ जुड़ेंगे. कॉम्बॉस में आपका स्वागत है. हेलो, धन्यवाद सर. चलिए मैच की ओर चलते हैं. 123 रन का टारगेट है, लंबा टारगेट और जगत सरकार का पहला विकेट. पैकआउट स्क्वायर लेग में 30 रन में खेले. आउटफील्ड काफी तेज है. रुपेश तांडेल को चकमा दिया और गेंद सीमा रेखा के बाहर निकलते हुए एमसीटी चौका 4 रन के लिए. चौका निकला. एक पहला विकेट जरूर जगत सरकार का, लेकिन उसके बाद एक बेहतरीन चौका. चौके के साथ शुरुआत हुई टीम की. 123 रन का टारगेट है. सोहेल शेख विकेट के पीछे और बॉलिंग बार पर लोकेश मीणा, जिस लोकेश मीणा ने बेहतरीन बल्लेबाजी की. सभी दर्शकों का जिस खिलाड़ी मनोरंजन के इस मैदान पर आज इस प्रतियोगिता की दूसरी अर्धशतक देखने के लिए मिला. सभी दर्शक कल के दिन के लिए रजत कुडालकर की 57 रन की पारी और आज के दिन की 56 रन की पारी जो लोकेश मीणा देखिए बैक पर जाकर हल्के सेकंड को खेला. लॉग मिड ऑफ में खिलाड़ी मौजूद है और एक विकेट, दूसरा विकेट निकलता हुआ. एक प्रेशर है, मानसिक दबाव है गणपति और ये स्पोंडा क्रिकेट टीम के लिए. 123 रन का बड़ा टारगेट उनके सामने. वो प्लेटफॉर्म मेरे ख्याल से साझेदारी होनी चाहिए क्योंकि लगातार 2 विकेटें निकल चुके. एक चौका जरूर हासिल किया, लेकिन लोकेश मीणा की ऑलराउंडर की यहाँ पर ऑलराउंडर खिलाड़ी है. क्या बेहतरीन यहाँ पर अपना प्लेटफॉर्म दिखाया है सर. क्या उसके बाद लोकेश मीणा के बारे में क्या कहना चाहते हैं? काफी अच्छी गेंदबाजी हो रही है. देखिए प्रतियोगिता में बतौर आइकॉन खिलाड़ी आप मैदान के अंदर आए तो आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है. बतौर बल्लेबाज आपको पहले रन बनाने हैं, तो आपने रन बनाए, एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपने बना के दिया और 123 एक बड़ा टोटल है. तो वो दबाव जो है ना सारे बल्लेबाज जो मैदान के अंदर आ रहे हैं वो महसूस कर रहे हैं. दूसरी तरफ आप ऑलराउंडर है, आपके पीछे वो ऑलराउंडर का स्टिकर लगा हुआ है, तो गेंदबाज भी बहुत बढ़िया कर रहे हैं. तो आइकॉन खिलाड़ी परफॉर्मेंस अच्छा करे तो बेहतर बात है. कल करण नंबर का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा. बहुत सारी उम्मीदें थी कि वो आके एक बार फिर अच्छा प्रदर्शन करे, तो फैन थोड़े से निराश हो सकते हैं. और टीम की जरूरत को समझते हुए लोकेश ने बेहतरीन प्रदर्शन किया. बेहतरीन. सभी दर्शकों की निगाह के उनके ऊपर है. दर्शकों की तादाद भारी संख्या में इस मैदान पर. सभी दर्शक सिंधुदुर्ग में से भी यहाँ पर आए हैं. गोवन भूमि के भी यहाँ पर दर्शक बहुत है, तो दर्शकों का मनोरंजन कर रहे हैं. लोकेश मीणा काफी अच्छी गेंदबाजी, नफी तुली जैसी गेंदबाजी कर. स्ट्राइक पर नए बल्लेबाज मौजूद है. स्ट्राइक पर अजय सामना करेंगे इस गेंद का, लेकिन गेंद विकेट के पीछे जहां पर सोहेल शेख दिखाई देते हुए गेंद को डॉट गेंद निकली. लोकेश मीणा का गेंदबाजी का पृथक्करण देखे तो बेहतरीन पृथक्करण. अच्छी गेंदबाजी बल्लेबाज के लिए मौका ही नहीं दिया. पहला विकेट, एक जब बड़ा विकेट हासिल किया जगत सरकार का, उसके बाद दूसरा विकेट भी निकला, तो काफी मुश्किल बन रहा है. अच्छी गेंद, शॉट कट किया. यहाँ पर शॉट पॉइंट में खिलाड़ी मौजूद है. दूर से गेंद को यहाँ पर रोकने की कोशिश, यहाँ पर कैच को करने की कोशिश कर रहे थे. थोड़ी सी गेंद दूर थी, लेकिन प्रयास अच्छा था. लेकिन 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाज ने. 1 रन के साथ
लगभग इस पहले ओवर की समाप्ति हुई। एक ओवर के बाद स्कोर वहीं पर रुका, जो कुल मिला के 5 रन स्कोरबोर्ड पर, 6 रन स्कोरबोर्ड पर। ना इस ओवर में बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी रही है। पहली गेंद पर सिंगल, दूसरी गेंद पर विकेट, चौथी गेंद पर बहुत ही जबरदस्त चौका आया था, उसके बाद में विकेट गिरा, बिंदी गेंद और सिंगल है। पहले ओवर में लोकेश मीना जो एक अपने अर्धशतक बनना, वो कॉन्फिडेंस गेंदबाजी में आया। इससे पहले लोकेश मीना संघर्ष कर रहे थे, ना बल्लेबाजी अच्छी हो रही थी ना गेंदबाजी, लेकिन एक अच्छा पल चाहिए, अच्छा मोमेंट आपके लिए चाहिए, एक अच्छी पारी की जरूरत होती है एक बेहतरीन बल्लेबाज के लिए, और वो हुआ। और उसके बाद में ऑलराउंडर लोकेश मीना ने पहले ओवर में बेहतरीन स्टार्ट करके अपनी टीम के लिए दिलाया। बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पर लोकेश मीना का एक बेहतरीन फॉर्म आना और कुडाल टीम क्रिकेट के लिए अच्छा होगा मेरे ख्याल से। अब गेंदबाजी में बदलाव है, पर गेंदबाजी की मोर्चे के ऊपर सर अंकुश वाम्बार्डे करते हैं। वाम्बार्डे एक्सप्रेस फुल टॉस गेंद, यहाँ पर मिड विकेट में खिलाड़ी मौजूद है। फुल टॉस गेंद के ऊपर एक सिंगल बना और सिंगल के साथ सोहेल नाइक गेंद को फील्ड करते थ्रो करते, तब तक 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाज ने। 1 रन के साथ स्कोर आगे पहुंचता हुआ 7 रन स्कोर बोर्ड पर। जिस खिलाड़ी की हम चर्चा कर रहे थे हाल ही में शेखर परब के साथ सिंधुगढ़ टेनिस क्रिकेट में, उनके पॉडकास्ट में एक मुलाकात भी हुई थी। जरूर बताए यहाँ से यहाँ पर क्रिकेट की जिंदगी शुरू हुई। वो यहाँ पर एक बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी कुडाल से, लेकिन 13 वाम्बार्डे एक्सप्रेस अंकुश वाम्बार्डे के ऊपर हावी हुए। यहाँ पर बैकफुट पर जाकर सफल होकर गेंद को खेला, मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से गेंद सीमा रेखा के बाहर, 6 रन के लिए। प्रथमेश ने पिछले मैच में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, और मुश्किलों से जरा कह दूं, अभी पहुंचा नहीं हूं मैं, मुश्किल जरूर है लेकिन ठहरा नहीं हूं मैं। बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी पिछले मैच में की थी, इस मैच में स्टार्ट अच्छा किया। दबाव तो है लेकिन अंडर प्रेशर एक बेहतर बल्लेबाजी करना प्रथमेश को भी आता है। जरूर प्रेशर सर जरूर मैं कह सकता हूं, क्योंकि जगत सरकार का पहला विकेट निकला जल्दी से, उनके ऊपर काफी जिम्मेदारी थी, उम्मीद कर रही थी क्रिकेट टीम। ये देखिए बेहतरीन स्ट्रोक, लगभग बल्ले के बीचों बीच रॉडिश लोंगन के रीजन में, गेंद सीमा रेखा के बाहर, लगभग ऑफिशियल का इशारा, सीमा रेखा के बाहर, 6 रन के लिए। कमाल की बल्लेबाजी बीच मैदान पर प्रथमेश नाइक द्वारा 19 पर स्कोर पहुंच चुका है, और स्लॉट में गेंद थी, रडार में गेंद थी। बल्लेबाज प्रथमेश नाइक ने थैंक यू वेरी मच कहा और सर्जिकल स्ट्राइक करने का काम किया। गेंद बॉर्डर के बाद लगातार 2 छक्के, 3 गेंदों में 13 पर खेल रहे, 433 का स्ट्राइक रेट है। बेहतरीन पारी, लाजवाब बल्लेबाजी इस मुकाबले में प्रथमेश नाइक द्वारा। सर पहले मुकाबले ने सभी दर्शकों का दिल जीत लिया था, 49 रन की भी यादगार पारी खेली थी। वो प्रथमेश बल्लेबाजी कर रहा है, ये देखिए, लेकिन बल्ला ऊपर, लेकिन मौका बन रहा है खिलाड़ी गेंद के नीचे, लगभग जल्दी में वापस लौट चुके। खास तौर से जो संयम था, वो संयम को बैठे, लगातार गेंद रन बंद रहे थे, लेकिन इस गेंद के ऊपर सिंगल आना चाहिए तो विकेट निकला। प्रथमेश का लौटना, तीसरा विकेट निकलता हुआ गणपति वॉरियर्स पोंडा क्रिकेट टीम का 123 रन की जॉब में स्कोर वहीं पर रुका है, जो 19 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। स्टार्ट तो बहुत अच्छा हुआ था, यहाँ से थोड़ा रुक कर खेलने की जरूरत थी, लेकिन मोमेंटम के साथ जाना चाह रहे थे तो तीसरा बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश की और प्रथमेश की पारी समाप्त हुई। मिड ऑफ पर जो खिलाड़ी है, बहुत ही बढ़िया कैच प्रवीण ने लिया। दबाव बढ़ रहा है इस वक्त बल्लेबाजी। तो 13 वाम्बार्डे एक्सप्रेस मिस्टर सर अंकुश वाम्बार्डेकर बॉलिंग मार्क पर, बहुत ही अनुभवी क्रिकेटर, बहुत ही अनुभव, बहुत लंबी क्रिकेट की कहानी जुड़े अंकुश वाम्बार्डेकर। बैकफुट पर जाकर ऑन साइड पे घूमकर मारा है, मिड विकेट खाली जगह, लगभग गेंद सीमा रेखा के बाहर निकलते हुए एमसीटी चौका, 4 रन के लिए। बेहतरीन टाइमिंग, माइंडसेट बहुत अच्छा है, और बल्लेबाज चंदन दे दनादन, दर्शकों को हो रहा है मनोरंजन। गेंद बॉडी रन के बाहर, रन मिलेंगे 4, शानदार चौका बल्लेबाज चंदन नाइक का। मिडान का खिलाड़ी दायरे के अंदर है, डीप मिड विकेट बॉर्डर की तरफ है, काउ कॉर्नर पर खाली जगह थी, उसी क्षेत्र में खेला गया। बल्लेबाज चंदन का स्टार्ट अच्छा, 4 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, स्कोर 23 रन 3 विकेट के नुकसान पर। इसी ओवर की आखिरी गेंद लेके फिर से एक बार देख सकते हैं, सीधे बल्ले से गेंद को खिलाड़ी मौजूद है,
अच्छा कैच लिया लोकेश चौहान ने और एक विकेट। इसी ओवर की बात की जाए तो लगातार विकेटें निकल चुकी, खासतौर से सर पहले ओवर में बात की जाए तो 6 रन 2 विकेट आए थे जगत सरकार और 1 विकेट लोकेश मीणा ने बेहतरीन स्पेल किया था। लेकिन अंकुश बंबरडेकर की इस स्पेल की चर्चा करें के तो 2 बड़े शॉट, 2 छक्के, 1 चौका आया था, 17 रन खर्च किया और 2 महत्वपूर्ण सफलता हासिल की। सफल ओवर रहा। अभी रनों की रफ्तार बहुत अच्छी है, 23 रन आपके स्कोरबोर्ड पर है, आपके 4 विकेट गिर गए, वो थोड़ी परेशानी रहेगी, लेकिन रनों की रफ्तार बहुत बेहतरीन। पावर प्ले में बल्लेबाजों ने जो की है, स्टार्ट अच्छा किया, लेकिन जब अच्छा स्टार्ट मिला उसके बाद में जब आप बड़े स्ट्रोक खेलने के लिए जा रहे थे तब आप शिकार बन के डगआउट की तरफ चले गए। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 ओवर स्कोर 20 for 4। दबाव बढ़ता हुआ बल्लेबाजों के ऊपर अजय बदो पर खेल रहे अंकुर सिंह मैदान के अंदर आए हैं। उत्तर प्रदेश प्रीमियर लीग में मैन ऑफ द सीरीज इनको मिला था, रायगढ़ की कप्तानी कर चुके, अनुभव इनके पास है, बल्लेबाजी कर सकते हैं लेकिन विकेट के ऊपर खड़े रहने की जरूरत है। पिछले ओवर में रन भी आए और विकेट भी गिरे। रन तो बहुत बने, 17 रन खर्च के पिछले ओवर में 2 विकेट हासिल के, 4 विकेट गिर चुके, तो 4 विकेट 23 रन। अब आने वाले 6 ओवर बच चुके और 36 गेंदें और मुकाबला जीतने के लिए 100 रनों की जरूरत है। 123 रन का टारगेट है, तो 23 रन बच चुके, तो लगभग देख सकते हैं। स्ट्राइक पर अंकुर सिंह दे बल्लेबाज सामना करेंगे, गेंदबाज देख सकते हैं स्ट्राइक पर लोकेश चौहान जो नए बल्लेबाज। स्ट्राइक पर बल्लेबाजी करने के लिए चंदन नाइक सामना करेंगे इस ओवर की पहली गेंद का। तीसरे ओवर की शुरुआत करेंगे और शुरुआत के तीसरा ओवर लेके लोकेश चौहान खुद का पहला टीम की ओर से महत्वपूर्ण तीसरा ओवर लेके शुरुआत की थी। लोकेश मीणा ने बेहतरीन गेंदबाजी हुई थी, उसके बाद अंकुश बंबरडेकर और तीसरे स्पेल की शुरुआत फुल टॉस बनाकर खेलने की कोशिश, यहाँ पर ठीक तरह से बल्ले पर आई नहीं। यहाँ पर विकेट के पीछे सोहेल शेख ने गेंद को गैदर किया। अच्छी सोहेल की बात की जाए तो काफी अनुभव है क्रिकेट में, ज्यादा से ज्यादा बहुत सारा क्रिकेट खेल चुके वो सोहेल नाइक। यहाँ पर सोहेल शेख देख रहे हैं, पहली गेंद में डॉट निकली और उसके साथ फिर से एक बार बॉलिंग मार्क पर चंदन नाइक के लिए फुल टॉस बनाकर गेंद को बैट टू द बॉलर खेलने की कोशिश। वाइडिश लॉन्ग ऑफ रीजन में खिलाड़ी मौजूद है, गेंद को फील्ड करते थ्रो करते और 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाज ने। 1 रन के साथ स्ट्राइक रोटेट हुआ, स्कोर 24 रन 24 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट्स। 123 रन की जॉब में स्ट्राइक पर अंकुर सिंह। फुल टॉस गेंद, लो फुल टॉस, फायदा नहीं बने यहां पर देख सकते हैं, लेकिन ऑफिशियल्स का इशारा जरूर बना जो नो बॉल का फुल टॉस से गेंद अच्छा गेंद को रोका, लेकिन ऑफिशियल्स का इशारा हमारे तरफ बनता हुआ नो बॉल का और एक बोनस के रूप में 1 रन। इस गेंद के ऊपर फ्री हिट का सुनहरा मौका मिलेगा प्रशांत जी सर, इस मौके का फायदा कितना उठा सके। तो स्ट्राइक पर है बल्लेबाज अजय, उनके लिए मौका बनेगा। 123 रन का लंबा टारगेट है। स्कोरिंग की बात की जाए तो पहले ओवर में 6 रन, दूसरे ओवर में 17 रन, यानी कि तीसरा ओवर प्रगति पर। अच्छी गेंद, यहां पर जोर से जरूर बल्ला घुमाया था, लेकिन उतनी तेज गेंद निकली। गेंद यहां पर पिच के ऊपर पड़ने के बाद तेजी की रफ्तार से सोहेल के ग्लस्तानों में अच्छी गेंदबाजी वापसी कर चुके हैं। पूरी मुकाबले की बात की जाए तो कुडाल क्रिकेट टीम बल्लेबाजी में बेहतरीन प्रदर्शन के सभी दर्शकों की यहाँ पर खुश किया है। पर इस मैदान पर फुल टॉस बनाकर गेंद को खोज के निकला और डीप एक्स्ट्रा कवर में खिलाड़ी मौजूद है, दूर से यहाँ पर गेंद को खेला है, लगभग 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलटे, थोड़ी सी मिसफील्ड, यहाँ पर मिसफील्ड का फायदा, दूसरा रन भी पूरा किया। जो यहाँ पर बल्लेबाजी कर रहे हैं अजय के खाते में 2 रन बने और टीम के खाते में 2 रन, यानी कि टोटल स्कोर पर पहुंचता हुआ 28 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। 123 रन का टारगेट है, 28 रन 4 विकेट, लेखा जोखा इस मैच का। फुल टॉस, फिर से एक बार फुल टॉस, लो फुल टॉस थी, लेकिन शॉर्ट कवर पॉइंट में खिलाड़ी मौजूद है, इनको उठाते थ्रो करते 1 रन और खाते में, महेश के खाते में 1 रन और टीम के खाते में 1 रन, यानी कि 29 रन 4 विकेट के नुकसान पर।
स्ट्राइक पर लंबे कद के खिलाड़ी अंकुर सिंह, उनके ऊपर काफी दारोमदार इस मैच का बहुत सी जिम्मेदारी भी है। उम्मीद सभी दर्शक कर रहे हैं, एक यहाँ पर लोकेश मीना की जो बल्लेबाजी हुई थी उनकी वैसी बल्लेबाजी इस खिलाड़ी से होनी चाहिए। वो गणपति वॉरियर्स यहाँ पर देख रहे हैं। बैट टू द बॉलर, मौका नहीं बना, सीधे बल्ले सेकंड को खिला। यहाँ पर वाइडिश लॉन्ग ऑन सेकंड को उठाते थ्रो करते 1 रन पूरा किया। 1 रन के साथ अंकुर सिंह के खाते में 1 रन और टीम के खाते में 1 रन, यानी कि 30 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। तीसरा ओवर समाप्त हुआ। 3 ओवर के समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 30 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। आओ खेले आज जम के रहे न कुछ भी बाकी। चक्को चौकों की बौछारे या गिर जाए डंडी, अरे चक्के चौकों की बौछारे या गिर जाए डंडी। घुमा दे बल्ला जोर से चिल्ला कर दे हल्ला गुल्ला, घुमा दे बल्ला जोर से चिल्ला कर दे हल्ला गुल्ला। वेलकम बैक, सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं एमसीटी 2025 सीजन 7 और तीसरे दिन की कहानी। बीच मैदान पर आई मौली कुडाल के जो हालात है बहुत ही बेहतरीन और गणपति वॉरियर्स इस वक्त संघर्ष कर रहे हैं। 30 रन 4 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर की कहानी समाप्त हुई है। बैटरी जोन में आप जाके एक बार फिर क्यूज गेम खेल सकते हैं और आपको मिलेगा पावर बैंक, सीपर बॉटल और ग्रैंड प्राइज iPhone 17। 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ और स्कोर रुक चुका है 30 रन स्कोर बोर्ड पर। चौथे ओवर की शुरुआत करेंगे सोहेल शेख। कट किया गेंद को यहाँ पर बैकफुट पर जाकर ऑफ साइड में डीप एक्स्ट्रा कवर में खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन गेंद को फील्ड करते तब तक और फील्ड काफी तेज है। गेंद सीमा रेखा के बाहर निकलते हुए एमसीटी चौका 4 रन के लिए। चौके के साथ शुरुआत हुई इस स्केल की, जहां पर अंकुर सिंह स्ट्राइक पर है। 34 रन 4 विकेट के नुकसान पर। कट करने की कोशिश यहाँ पर अंदरूनी किनारा और 1 विकेट, 5वां विकेट। जल्दबाजी हुई यहाँ पर अंकुर सिंह की। पहला चौका आया, लेकिन उसके बाद और एक शॉट खेलने की, कट करने की कोशिश, उसके अंदाज से और 1 विकेट गणपति और यस फोंडा क्रिकेट टीम का। 5 विकेट के नुकसान पर 34 रन स्कोरबोर्ड पर। 123 रन का टारगेट और 23 रन का टारगेट चेस करते हुए आधी टीम यहाँ पर वापिस लौट चुके। 5 विकेट के नुकसान पर 34 रन स्कोरबोर्ड पर। 34 रन लॉस ऑफ 5 विकेट्स गणपति और यस फोंडा क्रिकेट टीम। विपरीत स्थिति में टीम है और सैंडी वो टाइटल सॉन्ग लेके आ रहे हैं। सोहेल शेख ने अपनी टीम के लिए महत्वपूर्ण विकेट निकला, जो पहले गेंद के ऊपर चौका, उसके बाद विकेट। कट करने की कोशिश, देखिए तेज रफ्तार गुल्ले स्पॉट के ऊपर गेंद पड़ने के बाद अच्छी गेंद वापसी कर चुके। लगातार 3 गेंदों का खेल समाप्त हुआ, लेकिन 3 गेंदों में 4 ही रन खर्च किए। 34 रन 5 विकेट के नुकसान पर टीम के कप्तान है सोहेल शेख। काफी अनुभव बहुत सा है। टेनिस क्रिकेट की बात की जाए तो अनुभव के साथ खड़े उतरे इस मैदान पर। बिल्कुल सही गेंदबाजी, सीधे बल्ले से गेंद को खिला, लगभग यहां पर कमेंट्री बॉक्स के ऊपर गेंद सीमा रेखा के बाहर। 6 रन के लिए। आनंद पाटिल यहां पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक बड़ा शॉट दिखने के लिए मिला सभी दर्शकों के लिए।
फिर से एक बार अलग तरह से करने की कोशिश, लेकिन बल्ले का टॉप पैच और एक विकेट, छठा विकेट निकलता हुआ। अंकुश बांबार्डेकर ने बेहतरीन गेंद को गैदर किया, स्कोर वहीं पर रुका। लग रहा था सभी प्रशांत जी लगता है यहाँ पर एक बल्लेबाज आता है, छक्का चौका निकालता है, लेकिन हर गेंद के ऊपर बड़े शॉट खेलने की तलाश कर रहा है। जी हाँ, वो सबसे ज्यादा रन जब बनते हैं तो दबाव अपने आप मनोवैज्ञानिक दबाव जो है ना वो बल्लेबाजी के ऊपर आता है। और 40 रन 6 विकेट के नुकसान पर है तो वो साझेदारी नहीं बन पा रहे। वो सबसे बड़ी तकलीफ वाली बात रही है गणपति वॉरियर्स टीम के लिए। जीतने के लिए 123 रनों का टारगेट है और गणपति वॉरियर्स की पारी लड़खड़ाते भी विकेट गिरने का सिलसिला जारी है। दबाव पूरी तरह से बल्लेबाजों के ऊपर और बैटरी.ai विकेट से एक बार फिर बहुत एंजॉयमेंट आपको मिलेगी बतौर गेंदबाज। क्यूज एंड गेम्स खेलने पर आपको मिलेगा एक रिवार्ड्स पावर बैंक, सिप बोटल एंड ग्रैंड प्राइज iPhone 17। बेहतरीन गेंदबाजी सोहेल शेख द्वारा इसी ओवर की बात की जाए तो एक छक्का एक चौका और महत्वपूर्ण अखिल जी 2 विकेटें हासिल की है। आखिरी गेंद होगी इस ओवर की अमीरगढ़ का। फिर से एक बार टॉप पैच, अंकुश बांबार्डेकर गेंद के नीचे और एक विकेट इसी ओवर में। क्या जल्दबाजी हुई। कुडाल क्रिकेट टीम की बात की जाए तो आईमावली कुडाल क्रिकेट टीम शुरुआत की बल्लेबाजी में कमाल की बल्लेबाजी, लेकिन गेंदबाजी में एक सटीक लाइन से गेंदबाजी हुई। उसी के आज देख सकते शुरुआत की थी लोकेश मीना ने, पहले ओवर में 6 रन 2 विकेट, दूसरे ओवर में अंकुश बांबार्डेकर 17 रन 2 विकेट, तीसरा ओवर लोकेश चौहान का 7 रन, कोई विकेट नहीं मिला। लेकिन चौथे ओवर की बात की जाए तो टीम के कप्तान सोहेल शेख ने 10 रन और 3 विकेट, यानी कि स्कोर रुका है। जो स्कोर बनता हुआ 4 ओवर के समाप्ति के बाद 40 रन स्कोरबोर्ड पर। ना इस मुकाबले में बल्लेबाजों ने हारागिरी की है और मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ से बातें करना बोलना आसान है, मैदान के अंदर जाके 123 रनों का पीछा करना इतना आसान नहीं। लेकिन इतना बड़ा टूर्नामेंट है, आपके पास आइकॉन खिलाड़ी है। अब इस टूर्नामेंट की बात करें तो 10 लाख की नकद राशि है, तो एक अच्छा खेल आपको करना था, बेहतर बल्लेबाजी आपको करनी थी, तो आपने नहीं की है। गणपति वॉरियर्स आपकी टीम में जो है ना इस वक्त संकट में है। 40 रन 7 विकेट के नुकसान पर 24 गेंदों में 83 रनों की जरूरत है और कुएं का पानी बहुत गहरा है, निकालने के लिए आपको मशक्कत करने की जरूरत होगी। एमसीटी 2025 का अद्भुत खेल आप देख रहे हैं, शानदार मैच। आज टेनिस क्रिकेट.in ने 21 लाख का आंकड़ा पूरा किया, ये इनके लिए हिस्टोरिकल मोमेंट होगा। और समीर जी मैं बिल्कुल आपको चाहूंगा कि आपकी आवाज थोड़ी देर के बाद हम सुनने के लिए बेताब हैं। स्कोर 40 for 7, 122 रन 3 विकेट के नुकसान पर 8 ओवर की समाप्ति के बाद आईमावली कुडाल टीम ने बनाए थे। लोकेश मीना का जबरदस्त प्रदर्शन इस प्रतियोगिता में। मिस्टर चौखबा में गेंद, लोकेश मीना हिम्मत मत खोना, ऐसे ही चलते रहना, जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं है उनको कुछ करके दिखाना। लोकेश मीना मैग्निफिसेंट बॉलिंग। थोड़ा ऑफ टर्म के बाहर था और बैकफुट में जाके ऑन साइड पर पुल करना चाहते थे, उछाल ज्यादा था, बल्लेबाज ज्यादा नहीं समझ पाए और ये मिस्टर स्ट्रोक था। लोकेश मीना ने बहुत ही बेहतरीन कैच लपका। लोकेश मीना का प्रदर्शन बहुत ही बेहतरीन है। पहले ओवर में केवल 6 रन दिए थे, इकोनॉमी में बिल्कुल आप देखें तो 5.14 का है और 3 विकेट चटकाने वाले गेंदबाज। जब आपके रन बने तो आपका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान की तरफ चला गया। एक बड़े जीत की तरफ अग्रसर होती हुई टीम आईमावली कुडाल। गणपति वॉरियर्स की अगर बात करें तो इस वक्त संघर्ष इनके लिए दबाव बढ़ता हुआ। शुरुआत से पहले हर कार्य कठिन होता है और आपकी शुरुआत ही अच्छी नहीं हुई, यहाँ से रिकवरी करने के लिए आपको दुबारा बल्लेबाजी भी करनी है और उसके साथ इस मुकाबले में आपको बहुत तेजी के साथ रन भी बनाने हैं। बैटरी.ai विकेट, दीप्तेश पालकर न्यू बैटर, नाउ स्कोर 40 for 8। अब टेलेंडर बीच मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए लोकेश मीना का एक बहुत ही अच्छा ओवर। 4 5 पर आपने देखे हैं, 2 हैट्रिक 2 अर्धशतक इस प्रतियोगिता में। आंसर पर अच्छा स्ट्रोक है, सुंदर टाइमिंग, गेंद जाएगी कॉर्नर बाउंड्री लाइन के बाद 4 रनों के लिए। एमसीटी दमदार चौका, बल्लेबाज दीप्तेश पालकर के बल्ले से
देखिए हर बल्लेबाज को स्टार्ट जरूर मिला है, लेकिन फिलहाल समस्या ये है आप एक बड़ा स्ट्रोक खेलते हैं, 2 बड़ा स्ट्रोक खेलते हैं, उसके बाद में आपका विकेट गिर रहा है। ये समस्या रही है इस मुकाबले में। स्कोर 44-8 विकेट के नुकसान पर। ऑन साइड पर दिया, घुमा के खेल दिया, स्क्वायर लेग बॉलर की तरफ गेंद जा रही है। चौका या छक्का, बल्लेबाज का इरादा है पक्का, और ये लगा शानदार चौका। दीप्तेश के बल्ला बोल रहा है बीच मैदान पर, बेहतरीन टाइमिंग। पैरों पर गेंद थी और हिंदुस्तान का कोई भी बल्लेबाज जब पैरों पर गेंद है तो नहीं आपको छोड़ने वाला है। दीप्तेश पालकर इस 2 चौके की मदद से 8 पर पहुंच चुके हैं। स्कोर 123 का आपको पीछा करना है। 48-8 विकेट के नुकसान पर गणपति वॉरियर्स। इस ओवर में बेहतरीन बल्लेबाजी दीप्तेश पालकर द्वारा। 2 गेंदों में 8 पर केंद्र है, 400 का स्ट्राइक रेट। लिमिटेड ओवर में 400 का स्ट्राइक रेट भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, जैसे कि आप बड़े टोटल का पीछा कर रहे हैं। यह अच्छी गेंद थी, अब इनकी गाड़ी पटरी पर आई। 2 गेंदें जो बिल्कुल बल्लेबाज के रडार में थी, और उसके बाद में एक गेंद जो ऑफ स्टंप के काफी बाहर। निखिल जी आपका स्वागत है। एक तरफ अकील यहाँ मौजूद है और इस टूर्नामेंट की दास्तान अपने कलमों से लिखने का काम अकील और निखिल ने किया है। ऑफ स्टंप के बाहर वाइड यॉर्कर, सटीक लाइन पर गेंदबाजी, गली पर खिलाड़ी तैनात, रन बनाने का कोई अवसर नहीं है। लोकेश मीना का प्रदर्शन बहुत ही बेहतरीन। इस प्रतियोगिता में दूसरा ओवर वो डाल रहे हैं, इस मैच में वो दूसरा ओवर डाल रहे हैं। 11 गेंदों में 14 रन, 3 विकेट, स्कोर 48-8 विकेट के नुकसान पर, और 5वां ओवर प्रगति पर है। बल्लेबाजों के ऊपर दबाव। खमा में गेंद, मिडा पर खिलाड़ी, गेंद के नीचे, ये कैच होना चाहिए, और लोकेश मीना ने 4था विकेट लिया है। 4 शिकार किए हैं लोकेश मीना। आपने के 4 शिकार, आपकी मेहनत नहीं जाएगी बेकार। लोकेश मीना ने कहा रंग भरने के लिए हम भी तैयार। मैच में किया पलटवार। क्या गेंदबाजी कर रहे, क्या गेंदबाजी कर रहे। लाजवाब प्रदर्शन। 56 रनों की पारी और बॉलिंग विश्लेषण। 2 ओवर 40 रन एंड 4 विकेट। एक्सीलेंट बॉलिंग बाय लोकेश मीना। 48/9। ऑल आउट का खतरा गणपति वॉरियर्स टीम के लिए। नए बैटर धीरे धीरे मैदान के अंदर आ रहे हैं। 123 रनों का टारगेट। बैटरी.ai विकेट। बहुत सारा फन, क्विज एंड गेम्स खेलने पर आपको मिलेगा रिवार्ड्स, और उसके साथ पावर बैंक सिपर्स और ग्रैंड प्राइज iPhone 17। एंजॉयमेंट लोकेश मीना के लिए बहुत ही बेहतरीन बल रहेगा जिस तरह से वो गेंदबाजी कर रहे हैं। बल्लेबाजी भी बहुत उम्दा। और अब 6ठा ओवर। श्रीकांत आज फील्डिंग में अपना दमखम दिखाया, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग का नजारा पेश किया। ऑन साइड पर गेंद को खेल दिया, टाइमिंग प्रॉपर नहीं है। बॉर्डर पर खिलाड़ी तैनात है, कॉर्नर क्षेत्र में जाके गेंद को फील्ड किया जाएगा। 1 रन का इजाफा, स्कोर 49/9। आखिरी जोड़ी मैदान के अंदर है, पुंडिक और प्रणल। और प्रणल का प्रदर्शन भी बहुत ही बढ़िया रहा बतौर गेंदबाज, लेकिन आपको बल्लेबाजी करनी है। 49/9 गणपति वॉरियर्स। आई माउली कुडाल टीम ने शिकंजा कस लिया है। 8 ओवर का ये मुकाबला, और आपके पास फिलहाल अभी भी 17 गेंदे हैं, 74 रनों की जरूरत। फ्लाइंग फ्लिप, एक गली पॉइंट, इस्टकावा लॉन्ग ऑफ, ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी, ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, स्क्वायर लेग, और 1 खिलाड़ी फाइन लेग पर। बहुत अच्छा यॉर्कर, थोड़ा सा डिस्टर्ब की तरफ चले गए थे, फॉलो किया श्रीकांत ने, और ऑन द टोस गेंदबाजी। लॉन्ग ऑन पर गेंद को फील्ड किया जाएगा। 1 रन लेने का अवसर। 50 रन पूरे हुए गणपति वॉरियर्स टीम के, लेकिन डगआउट में सन्नाटा है, कोई आवाज नहीं है। 16 गेंदे और जीतने के लिए 73 रनों की जरूरत। गेंदबाजी करे श्रीकांत, सामना करने के लिए प्रणल। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद कट किया, पॉइंट पर खिलाड़ी तैनात है। टाइमिंग भी बढ़िया था, लेकिन प्लेसमेंट नहीं है। यह सारा खेल जो है ना टाइमिंग और प्लेसमेंट का है। MTC 2025 सीजन 7 प्रतियोगिता का आज का 32वां दिन, और 2 दिनों की जो कहानी बहुत यादगार रही है। 59 विकेट के नुकसान पर गणपति वॉरियर्स। श्रीकांत तैयार। ऑफ स्टंप के काफी बाहर गेंद थी, कवर पर खूबसूरत स्ट्रोक, कवर ड्राइव। शॉट तो बिल्कुल बहुत बढ़िया, और यही काम बाकी बल्लेबाजों को करना था, लेकिन इंटेंट यह था कि हर गेंद के ऊपर आपको चौका छक्का जड़ना था। वो स्ट्राइक रोटेट करने की कोई कोशिश आपने नहीं की,
और हर गेंद के ऊपर हमला करने का प्रयास किया और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा गणपति वॉरियर्स टीम को। और सामने से सदी भी गेंदबाजी रही है लोकेश मीना की। 51 पर 9, छठा ओवर। ओ बल्ले का अंडूरी किनारा, फुटबॉल खेलते हुए विकेट कीपर, गेंद चली गई इस बार फाइन एक बॉडी रन के बाद 4 रनों के लिए। भाग्य का साथ मिला बल्लेबाज को। पुंडलिक 5 पर खेल रहे, स्कोर 55, 9 विकेट के नुकसान पर। छठा ओवर है, आखिरी गेंद शेष है। पुंडलिक प्रभु की अगर बात करें तो 50 प्लस खिलाड़ी है, लेकिन फिर भी फिटनेस बहुत ही बेहतरीन। ऑन साइड पर मिड विकेट बॉलिंग की तरफ पुंडलिक ने इस गेंद को उड़ाया है। बॉटम एंड का जबरदस्त इस्तेमाल। ओल्ड इज गोल्ड। डीप मिड विकेट पर लाजवाब छक्का, एमसीटी 6। जो डगआउट में खिलाड़ी ये क्रिकेट का खेल देख रहे हैं ना, जो 7-8 खिलाड़ी बल्लेबाज आउट हुए ना, उनके लिए सबसे बेहतर उदाहरण किस तरह से आपको बल्लेबाजी करने की जरूरत है। वैसे कुएं का पानी बहुत गहरा है, निकालने के लिए आपको मशक्कत करने की जरूरत है। इस मैच में कुडाल टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है, लाजवाब प्रदर्शन। स्कोर 61 for 9. Now remaining 12 minutes and need 62 run to win this match. और गेंदबाजी में अब बुलाया गया अंकुश गेंदबाजी करने के लिए। और आखिरी जोड़ी मैदान के अंदर है। गणपति वॉरियर्स 61, 9 विकेट के नुकसान पर। प्रणल 2 पर खेल रहे और पुंडलिक 11 पर बहुत महत्वपूर्ण पारी 3 रन पर 3 गेंदों का सामना किया है। ऑफसाइड पर कवर ड्राइव करना चाहते थे, गेंद अच्छी तरह से बल्ले के ऊपर नहीं है। पॉइंट पर गेंद को फील्ड किया जाएगा, 1 ही रन मिलेगा। पुंडलिक के ऊपर सबकी निगाहें हैं, जिन्होंने बॉटम एंड का इस्तेमाल करते हुए गेंद को डीप मिड विकेट बॉडी लाइन के बाहर भेज दिया था। और शानदार स्ट्रोक, बेहतरीन टाइमिंग। स्कोर 62 पर 9। 7वां ओवर है, 11 गेंदे 61 रनों की जरूरत है। पुंडलिक प्रभु इज ऑन 11। स्ट्राइक रेट 366 का, 1 चौका और 1 छक्का जड़ चुके हैं। फ्लाइंग स्लिप गली पॉइंट, लॉन्ग ऑन मिड विकेट स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी। इस बार भी बेहतरीन टाइमिंग है, लेकिन लॉन्ग पर खिलाड़ी है। फ्लैट खेले हैं और गणपति वॉरियर्स ऑल आउट। जो टारगेट देके 62 रनों की जरूरत थी और 60 रन से एक बहुत बड़ी जीत आई माउलीबा कुडाल टीम के लिए। 123 रनों का पीछा करने के लिए जब टीम आई, तब जाकर लगातार रेगुलर इंटरवल में विकेट गिरने का सिलसिला जारी रहा। और इसीलिए इस मैच में आपने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। कमाल का प्रदर्शन कुडाल टीम का। अब फिलहाल देखते हैं किस तरह से बल्लेबाजी हुई है। लोकेश मीना की जो पारी है वो बिल्कुल कमाल की। 17 गेंदों में इन्होंने 56 रन बनाए, 7 छक्के 2 चौके और स्ट्राइक रेट 329 का। उसके बाद में सोहेल ने बहुत अच्छा साथ निभाने का प्रयास किया, लेकिन उसको कामयाबी ज्यादा नहीं मिली। अब जाकर लोकेश मीना इस मैच में बहुत ही शानदार प्रदर्शन, लाजवाब प्रदर्शन इनका रहा और मैन ऑफ द मैच के हकदार बने हैं। आज 2 ओवर 14 रन 4 विकेट और उसके साथ 17 गेंदों में 56 रनों की धुआंधार पारी। टूर्नामेंट का दूसरा अर्धशतक जड़ने वाले खिलाड़ी हैं इस मैच में रूपेश तांडेल, जिनका योगदान भी बहुत बढ़िया रहा। 16 गेंदों में 39 रन, 243 का स्ट्राइक रेट। जोहेल ने 8 रन बनाए। ये तीनों का कंट्रीब्यूशन बहुत ही बढ़िया था। सीधा चलते हैं मैन ऑफ द मैच की तरफ और 10 मिनट का ब्रेक होगा, आपके लिए थोड़ा सा विश्राम मिलेगा और उसके बाद में यह मुकाबला शुरू होगा। लेकिन उससे पहले मैन ऑफ द मैच का अवार्ड हम देने वाले। मैन ऑफ द मैच के लिए मैं लोकेश मीना आपको बुलाना चाहूंगा प्रेजेंटेशन बॉक्स की तरफ। और क्या कमाल की बल्लेबाजी। लोकेश मीना आप आइए प्रेजेंटेशन बॉक्स की तरफ। अंकुर से मैं आपको दरखास्त करना चाहूंगा, आपको भी आना है प्रेजेंटेशन बॉक्स की तरफ। जगत सरकार आपको भी आना है प्लीज, आपके लिए रिक्वेस्ट है। जगत सरकार और करण अंबाला दोनों से बहुत उम्मीदें थी। इंडिया कप में मैंने जगत सरकार को बल्लेबाजी करते हुए देखा, जिस तरह से वो संजू कनौजिया ने बल्लेबाजी की थी उसी तरह की बल्लेबाजी उनकी रही थी। अंकुर सिंह आज आपका भी सम्मान हो जाएगा, तो प्लीज आइए। जगत सरकार आपको भी आना है और शाम हमारे साथ जुड़ेंगे प्रेजेंटेशन बॉक्स में। और 10 मिनट के बाद और एक संघर्षपूर्ण मुकाबला शुरू हो जाएगा।
और अगला मुकाबला भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। Lokesh Meena is the man of the match in this game. Fabulous knock and also 4 wickets. Presented by Mr. Salil from Kudal. We'll have a quick word with Lokesh. लोकेश, बहुत ही अच्छा बैटिंग किया आपने, बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है इस टूर्नामेंट में। लोकेश मीना एक नया उभरता सितारा जो बन के आया है इस टूर्नामेंट से। आपकी बैटिंग, आपके बॉलिंग के बारे में आप क्या बताना चाहोगे? कुछ नहीं, बस जो सीनियर प्लेयर्स खेल रहे थे हमारे साथ और बाकी मैचेस में जो खेले उनको देख के मतलब सीख रहे हैं, और अभी अपॉर्चुनिटी मिली तो अच्छा खेला, बैटिंग बॉलिंग दोनों अच्छा हुई, मजा आया खेल के। थोड़ा आपके जर्नी के बारे में बताइए, कहाँ से आपने शुरुआत की है और आज यहाँ पे आपने परफॉर्म किया है, स्टार्टिंग फ्रॉम योर बिगिनिंग टिल हियर। मैं टेनिस क्रिकेट में 3 से 4 साल से खेल रहा हूँ, बाहर की क्रिकेट, और मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। राजस्थान के बाद बंगाल खेला, बंगाल के बाद ऑल ओवर इंडिया में कुछ टूर्नामेंट खेल लेता हूँ, और अभी चल रहा है क्रिकेट, और अभी कोशिश करूँगा कि मेहनत करके बहुत ऊपर मतलब अच्छा परफॉर्म करूँ, और मतलब जहाँ भी जाऊँ तो मैं अपना नाम करूँ। बेहतरीन बैटिंग खमगणी, थैंक यू वेरी मच। We'll have a quick felicitation with Ankur Singh. Sanju Nagwekar Bhai will felicitate Ankur Singh for his valuable contribution in this tournament, and followed by Jagat Sarkar. And now have a quick word with Jagat Sarkar. Jagat Sarkar, brilliant batsman. Ankur, also if you can please join. हिंदी? हिंदी। क्या बताना चाहिए इस टूर्नामेंट के बारे में? गोवा में पहली बार इतनी बड़ी हुई है, और फिर भी हर बार हमने देखा है जगत सरकार का नाम बहुत ही ऊपर के लेवल पे बहुत बार लोगों ने लिया है। बहुत अच्छा टूर्नामेंट है और पिच भी बहुत अच्छा था, हमारी टीम भी बहुत अच्छी थी, पर आज कहीं ना कहीं मेरे लिए ख़राब डे था, तो इससे भी सीखने को मिला कि कैसे अपने आप को और अच्छा बना सकते हैं नेक्स्ट टूर्नामेंट के लिए। ओनर के बारे में 2 शब्द तो हमें चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से वो फोकस्ड रहते हैं और जिस हिसाब से वो अपने आप को पूरी तरह से गेम में डालते हैं, उनके बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? एक्चुअली ओनर का पता जब आप हार जाते हो तभी पता चलता है। ही इज़ अ जेंटलमैन, उन्होंने मुझे बुलाया है, लेकिन आज मैं परफॉर्म नहीं कर पाया, पर एज आई प्रॉमिस वो जितना दिन मुझे बुलाएंगे मैं उनकी टीम में आऊँगा। यस, वेल प्लेड। आपका भी कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा रहा इस प्रतियोगिता में। आपका क्या कहना चाहेंगे आप इस प्रतियोगिता के बारे में, जिस हिसाब से ऑर्गेनाइजर ने अपनी पूरी जी जान डाली है ये प्रतियोगिता ऑर्गेनाइज करने में? सर बहुत ही शानदार टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुआ है, मतलब आप देख सकते हैं किस हिसाब से विकेट बना है, बहुत ही शानदार, एक्चुअली इक्वल क्रिकेट है। और सर क्रिकेट इज पार्ट ऑफ द गेम सर, आज हमारा दिन नहीं था तो हम लोग अप टू द मार्क खेल नहीं पाए, मतलब कोई नहीं, कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम। क्या फ़र्क पड़ता है कि 70 बॉल में ज़्यादातर से क्रिकेट बाहर, गोवा के बाहर खेला जाता है, पर यहाँ पे मोस्टली हम देखते हैं कि खन्ना सुपर गेंद से बल्लेबाजी या गेंदबाजी होती है। क्या डिफरेंस होता है उन 2 बॉलों में? सर एक्चुअली मतलब आप मेरी बात करेंगे तो मेरे हिसाब से मतलब माइंड का फ़र्क होता है, क्योंकि मैं मतलब टेनिस बॉल, सीजन बॉल सब खेलता हूँ, तो अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो तो मुझे नहीं लगता कोई बॉल का फ़र्क होता है, लेकिन आई थिंक मतलब 70 का बॉल थोड़ा सा बड़ा होता है ये वाले बॉल से, तो मतलब मुझे लगता है कि वो ज़्यादा ईजी है बैटिंग के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर टाइम इन दिस टूर्नामेंट। We'll also would like to felicitate Dattaraj Gaus from the Ganpati Warriors, Ponda. जगत अंकुर, अच्छा मैं किसी से फोटो नहीं लेता, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपसे फोटो लेना चाहिए। मैंने एक्चुअली ना